capacity, which are in Kudangulam, reactor 1 and 2, which are 1000 megawatt capacity each, of which first one has been commissioned in October 2013, and Kakrapar, Gujarat, 2 reactors with 700 into 2, Rawalpindi, new one, it is under construction, 702 megawatt capacity, and Kalpakam, which is totally indigenous, the nuclear power plant, which has got which is one of the important things, is an experiment in our country, and that reactor is fast breeder reactor, which has been developed indigenously by our own scientists, nuclear scientists. With that, by 2017, we will be reaching 17,400 megawatt capacity. And as well as our future program is concerned, even in the 12th plan, the Honorable Prime Minister, about 2 days back, that is on 13th of January. तो नाज़रीन, ये थे मरकजी वज़ीर नारायण सामी जो कि मुख्तलिफ रिएक्टर्स के ताल्लुक से उठाए गए इक़दाम के बारे में मीडिया को जानकारी दे रहे थे। रुक करेंगे एक और खबर का। माहीगीरों की हलाकत के मामले में अतालवी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। अतालवी हुकूमत ने मुकदमे की कार्रवाई में ताखीर का हवाला देते हुए मेरीन्स को इल्जामात से बरी करने की दरख्वास्त की है। अतालवी हुकूमत की जानिब से पेश अर्जी में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के 1 बरस बाद भी इस मामले में फर्द जुर्म आयद नहीं की गई है। अतालवी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से मरकजी हुकूमत को इस मामले में कार्रवाई में तेजी लाने की हिदायत देने की भी दरख्वास्त की है। सुप्रीम कोर्ट में इस अर्जी पर पीर को समाअत होगी। मुल्क भर में आज आर्मी डे मनाया गया। नई दिल्ली के परेड ग्राउंड पर फौजी सरबराह जनरल बिक्रम सिंह ने सलामी ली और खिताब किया। जनरल बिक्रम सिंह ने कहा कि फौज फख्र और लगन के साथ मुल्क की खिदमत करती रहेगी और मुश्किल से मुश्किल चैलेंजेस का भी बड़ी ही कामयाबी के साथ सामना करेगी। इस मौके पर कई फौजी जवानों और शहीद जवानों के अहल खाना को एजाज से भी नवाजा गया। इस दौरान फौजी ताकत का भी शानदार मुजाहिरा किया गया। The next contingent is of General Infantry, Light Infantry, commanded by Lieutenant Abhishek Mahajan of 11 Chakras. Mahajan Mahavir Chakras, 250 Chakras, 2 Uttam Yuddha Sena Made 5 Mahamdar के हाथ। रेडियो सजनों, देखे मुख्य जन सम्मान में निरीक्षण अधिकारी को सैल्यूट करते हुए रेडियो सजनों जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। Of 1872 Rocket Regiment, the latest acquisition in Indian artillery. Members of the team making the flying fish. And 10 members of the team making the beautiful fly. And Kumari Lord Shiva Krishna will be members making this. उत्तर प्रदेश हुकूमत ने मुजफ्फरनगर फसाद मुतासिरीन के लिए खुसूसी मेडिकल मुहिम चलाई है। मुहिम के तहत खासतौर पर हामिला खवातीन और बच्चों की खुसूसी जांच की जा रही है। जराये के मुताबिक मेडिकल टीम ने 168 हामिला खवातीन और मुतादिद बच्चों की तिब्बी जांच कर चुकी है। जमीयत उलमा के सदर अरशद मद्दीन ने मुजफ्फरनगर फसाद पनाहगजीनों के लिए जमीयत की जानिब से बनाए गए मजीद 51 घरों की चाबियां उन्हें सौंपी हैं। वाज़ेह रहे कि इससे पहले जमीयत की जानिब से 72 मकानात पनाहगजीनों को बनाकर दिए गए हैं। इस मौके पर अरशद मद्दीन ने कहा कि हुकूमतें ख्वाह वो मरकजी हों या रियासती, वो अक़लियतों और खासकर मुसलमानों के तई संजीदा नहीं है। से बेघर लोगों को 51 मकान
کی اور چابی دے رہے ہیں. اس وقت ہمیں یہ افسوس ہے اور یہ کہنے پر ہم مجبور ہیں کہ اگر ملک کی سیکولر سیاسی جماعتیں اپنے وعدوں کو جو اپنے مینیفیسٹو میں کرتی ہیں ان کو پورا کرتی ہیں اور ملک کے اندر مسلم اور غیر مسلم بلکہ اقلیت اور اکثریت کے درمیان جو دوہرے پیمانے ہیں ان کو نہ اپناتی تو آج عام آدمی پارٹی کی شکل میں کوئی متبادل پارٹی وجود میں نہ آتی، اور اگر وجود میں آتی تو اس کی طرف عام جنتا اکثریت اور اقلیت کے افراد اس طرح نہ دوڑتے جس طرح آج ہمیں دوڑتے نظر آ رہے ہیں. ہم یہ بات کہتے ہیں چاہے وہ مرکزی پارٹیاں ہوں، نیشنل لیول پر ہوں یا صوبائی لیول کے اوپر ہوں، کہ 2014 میں اگر مرکز اور صوبوں میں وہ چاہتی ہیں کہ انہیں کامیابی ملے تو ہر اقلیت اور خاص طریقے پر مسلمانوں سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنا ہوگا. مظفر نگر کے فرقے وارانہ فسادات نے جن خاندانوں کو بے گھر کر دیا اور انہیں خانہ بدوشوں کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا، جمعیت علماء ہند پہلے دن سے اس کے لیے فکر مند تھی اور ہم نے مسلمانوں کے تعاون سے 72 خاندانوں کے مکانات کی چابیاں پہلے مرحلے پر سونپنے کے بعد آج دوسرے مرحلے. اور ناظرین، اس سلسلے میں مزید بات چیت کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت فون لائن سے جڑ چکے ہیں ہمارے میرٹھ سے نمائندے تنزیر انصار. جی تنزیر، آخر حکومت اب تھوڑی بہت تو جاگی ہے لیکن کافی دیر نہیں ہو چکی ہے؟ جی ہے نا، جس طرح سے یہ 4 مہینے کا وقفہ گزرا ہے فساد کے بعد کا، تو جس طرح سے حکومت کو اقدامات کرنے چاہیے تھے، جو انتظامات وہاں ہونے چاہیے تھے، وہ ان 3 مہینوں میں نہیں ہوئے. آخری 1 مہینے میں جب سے ساری چیزیں میڈیا میں اور سب کچھ سارے انتظامات کے بارے میں میڈیا میں آنا شروع ہوا، جیسے لوگوں نے جا کے وہاں پہ دیکھا، تو اس کے بعد سے پھر انتظامات میں تیزی آئی. حکومت نے بھی کوششیں کی ہیں، لیکن ابھی بھی جس طرح سے کیمپوں کی بات کی جاتی تھی کہ لوئی میں یا پھر شاملی میں یا دوسری جگہ پہ کیمپ موجود تھے، انہیں وہاں سے ہٹایا گیا. بہت سے لوگ اپنے گھروں کو لوٹے ہیں، گئے ہیں گاؤں میں، لیکن ابھی بھی ایسے بہت سے متاثرین ہیں جو ابھی اپنے رشتہ داروں کے یا پھر کسی دوسری جگہ پہ جہاں پہ ان کو آسرا ملا ہے دوسرے گاؤں میں، وہاں پہ موجود ہیں. مدد اور باضابطہ کاری کی جو بات کی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے، اس میں کوششیں ہوئی ہیں، لیکن جس طرح سے زمینی حقیقت اس سے تھوڑا الگ ہے. جس طرح سے کام ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہوئے ہیں. حالانکہ سماجی تنظیموں نے اس میں پیش رہ کے بہت کوششیں کی ہیں. شاید ان کی کوششوں کا بھی اثر رہا کہ حکومتوں پر جو ہے دباؤ پڑا اور اس نے کوششیں آگے بڑھائی، اپنی مدد کی جو پیشکش تھی وہ آگے بڑھی ہے. جی نا جی تنزیر، جس طرح سے ارشد مدنی نے جو ہے وہ مکانات کی چابیاں وہ سونپی ہیں اور کل انہوں نے ملاقات بھی کری تھی، سی ایم سے انہوں نے ملاقات کری تھی، تو کہیں نہ کہیں اس کو ہم سیاسی تناظر میں دیکھ سکتے ہیں. آپ کا تجزیہ؟ جی، جس طرح سے جو ہے مکانات کامپور گاؤں میں یا پھر دوسرے گاؤں میں زمین لے کے جمعیت علماء ہند نے اپنی کوششوں سے تعمیر کرائے ہیں، تو وہ خاندان وہاں پہ بسے تو ہیں جو متاثر سے دوسرے گاؤں سے آئے تھے، فساد متاثرین ہیں. لیکن ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے نا کہ وہاں پہ ان لوگوں کو یہاں پہ بتایا گیا تو کہیں نہ کہیں حکومت کی ایک لاپرواہی بھی رہی کہ انہوں نے ان لوگوں کو تحفظ نہیں فراہم کرایا، اس طرح سے جو مدد کرائی جانی تھی فراہم وہ نہیں کرائی. ان کے دلوں میں ڈر تھا کہ وہ اپنے گاؤں کو واپس نہیں گئے، اس لیے سماجی تنظیموں نے یہ کوششیں کی اور ان کو دوسری جگہ بسایا گیا. جہاں تک سیاسی جو ہے پہلو کی بات ہے تو 2014 کا الیکشن ہے، قریب ہے. سماج وادی پارٹی صوبے کی اسمبلی پر بڑی زیادہ سیٹیں لے کر آئی ہے، تو وہ کوشش یہی کر رہی ہے کہ اس کو نقصان نہ ہو پارلیمانی الیکشن میں. لیکن
کہیں نہ کہیں سیاسی ماحول بھی بنے گا. جس طرح سے مغربی اتر پردیش میں ایک کوشش ہوئی ہے, فساد کے بعد یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ موبلائز ہوئے ہیں لوگ, تو سیاسی اثر بھی پڑے گا. بیانات بھی اسی طرح کے آ رہے ہیں. کہیں نہ کہیں ارشد مدنی کا جو بیان کل کا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ نہیں حکومت نے کوششیں کی ہیں, آج انہوں نے یہ کہا کہ میں ان کو کلین چٹ نہیں دیتا, لیکن جس طرح سے کوششیں ہونی چاہیے تھی حکومت کی انتظامیہ کی وہ نہیں ہوئی ہے. تو آج انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے کلین چٹ نہیں دی ہے, یہ میڈیا نے دکھایا, لیکن جو کوششیں ہونی چاہیے تھی اس میں پیش رفت ہوئی. چلیے کم سے کم بہرحال ایک شروعات تو ہوئی ہے. تنظیر اس تمام جانکاری کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ وہاں مسلسل حالات پر نظر بنائے رکھیے, ہم اگلی بلیٹنز میں آپ سے جانکاری لیتے رہیں گے. تو ناظرین, یہ تھے مظفر نگر سے ہمارے نمائندے تنظیر انصار جو کہ بتا رہے تھے کہ بہرحال حکومت نے کچھ تو اچھی شروعات کی ہے. بلیٹن میں وقت ایک بریک کا, بریک کے بعد چل لوٹتے ہیں. آج کل کے انہیلدی لائف سٹائل, کھان پان وغیرہ کی وجہ سے لیور کی کمزوری ایک عام بات ہو گئی ہے. نتیجہ گیس, کھانا ہضم نہ ہونا اور بھوک نہ لگنا. پیش ہے ہمدرد جگرین, مفید جڑی بوٹیوں سے بھرپور. جگرین ایک قدرتی لیور ٹانک ہے. جگرین کا روزانہ استعمال آپ کو دیتا ہے کیمیاوی اور زہریلے عناصر سے حفاظت, بہتر قوت ہاضمہ, پیلیا جیسی جگر کی بیماریوں کے علاج میں مدد. اپنائیے ہمدرد جگرین اور اپنے لیور کو بنائیے اسٹرانگ. یہ ہے روزی جسے اپنے حقوق کا علم ہی نہیں تھا, لیکن اب سرکار کی اقلیتی فرقے کی خواتین میں قوت قیادت بڑھانے والی نئی روشنی اسکیم نے روزی جیسی ہزاروں خواتین کو اپنے گھروں سے باہر آنے پر راغب کر کے خود مختار بنایا. وزارت برائے اقلیتی امور کی اسکیم میں سرکاری نظام, بینکوں اور دوسرے مددگار اداروں کے ذریعے تمام اقلیتی خواتین کو اپنے روزمرہ کے بیرونی کام کرنے کے لیے تکنیکی معلومات فراہم کرائی جا رہی ہیں, جس سے ان میں ایک نئی خود اعتمادی پیدا ہو رہی ہے. آج روزی اپنے پیروں پر کھڑی ہے اور اپنے جیسی دوسری خواتین کو بھی نئی روشنی اسکیم کی طرح طرح کی ٹریننگ دے رہی ہے تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکے. اقلیتی خواتین میں قوت قیادت بڑھانے والی نئی روشنی اسکیم. امید ہے آپ بنیں گے تو بنے گا ہندوستان. مسلمانوں کے حالات ہیں وہ کئی جگہ شیڈول کاسٹ اور شیڈول ٹرائب سے بھی گئے گزرے ہیں. جب ہم مائنورٹی کہتے ہیں تو مائنورٹی ایک ہوموجینئس گروپ نہیں ہے, ہیٹروجینئس گروپ ہے. الگ الگ مائنورٹیز کے الگ الگ ایشوز ہوتے ہیں. 1984 کے سکھ متاثرین جو وارانہ فسادات میں ہوئے تھے ان کے لیے 650 کروڑ روپے کا پیکیج دیا, اس کا ڈسٹریبیوشن ہوا. وہی پیکیج جب گجرات کے لیے جاتا ہے تو وہ واپس آ جاتا ہے. 84 کے ریٹس میں دیے ہیں تو اسٹیٹ گورنمنٹ کو ہی دیے ہیں, ہم ڈائریکٹ ڈسپینس نہیں کر سکتے. بہت ساری وقف پراپرٹی ایسی ہیں جہاں ریاستی حکومت نے اور مرکزی حکومت نے بھی قاصدانہ قبضہ کیا ہوا. سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے کہ ونس اے وقت آلویز اے وقت. سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہم ان تمام جو ناجائز قبضے یا قبضے جو جاگیر ابالیشن انعام کے آئے ہیں ہم اس کو ریویو کر رہے ہیں. مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور کے رحمان خان سے دیکھیے خاص ملاقات جمعرات کی رات 8 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. ناظرین آداب, میں ہوں ثنا, ای ٹی وی نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے. سب سے پہلے خبرنامے کی سرخیاں. عام آدمی پارٹی ایم ایل اے ونود کمار بنی کا کیجریوال پر حملہ. وزارت اور ایم پی کے معاملے پر کیجریوال کے الزام کو بتایا جھوٹ. مایاوتی نے بی جے پر لگایا الزام, کہا 2003 میں قومی سطح پر اتحاد کے لیے سی بی آئی کا کیا تھا غلط استعمال. جسٹس سوتنتر کمار کے خلاف لا انٹر کے جنسی ہراسانی کا معاملہ. سپریم کورٹ نے مرکز اور سابق جج کو جاری کیا نوٹس. اور فوج مشکل سے مشکل چنوتیوں کا کرتی رہے گی سامنا. آرمی ڈے پر فوجی سربراہ کا اعلان. ناظرین یہ تھی سرخیاں, آپ خبریں تفصیل سے.
मरकजी वजीर और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा नारायण सामी ने कहा है कि राहुल गांधी में वजीर आजम बनने की पूरी सलाहियत मौजूद है। नारायण सामी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुल्क का नौजवान और मुतवस्सित तबका राहुल गांधी को वजीर आजम के ओहदे के उम्मीदवार के तौर पर देखना चाहता है। ताहम उन्होंने कहा कि वजीर आजम के ओहदे का उम्मीदवार कौन होगा, इस ताल्लुक से कांग्रेस आला कमान को तय करना है। Prime Minister Dr. Manmohan Singh, on 3rd of January, when he was meeting the press, he made it very clear that Rahul Gandhi is the Prime Minister candidate, Prime Minister material, and he has got all the capacities to become the Prime Minister. Prime Minister himself said that, number one. Number two, the younger generation in our country, especially the youth, and also the middle class people and the poorer sections of the society, the majority of the people in this country wanted the Rahul Gandhi ji to take over the mantle as the Prime Minister candidate. बीजेपी हाईकमान ने जम्मू और कश्मीर असेंबली के 5 MLAs की पार्टी रुकनियत बहाल करने का फैसला किया है। ताहम चमन लाल गुप्ता और जगदीश सपोलिया पर हाईकमान ने कोई फैसला नहीं लिया है। MLC इंतखाबात के दौरान वोटिंग मामले पर बीजेपी ने 7 MLAs को पार्टी की रुकनियत से खारिज कर दिया था। गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी का कहना है कि मुल्क के अवाम को मौजूदा हुकूमत पर से एतमाद उठ गया है और एतमाद बहाली के लिए मुल्क को एक मजबूत क़यादत की जरूरत है। नरेंद्र मोदी ने आज गांधीनगर में FICCI के इजलास में खिताब के दौरान ये बात कही। समाज आज बारीकी से हर चीज का डिसेक्शन करता है और हम इतना दूध से जले हुए हैं कि अब छाछ भी फूंक फूंक पर पीने की आवश्यकता है, वरना फिर हम उलझ जाएंगे। और इसलिए पूरे देश में एक विश्वास का माहौल, एक भरोसा का माहौल, ये बहुत आवश्यक है। बीजेपी के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने अक़लियती नौजवानों की गिरफ्तारी के ताल्लुक से तबसरे पर वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। मोदी ने इस सिलसिले में वजीर आजम मनमोहन सिंह को एक खत लिखकर ये मुतालबा किया है। वाज़ेह रहे कि जुमा के रोज वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने कहा था कि उन्होंने सभी रियासतों के वज़राए आला से कहा है कि वो अक़लियती नौजवानों की गिरफ्तारी के मामले में एहतियात बरतें। शिंदे ने यह भी कहा था कि वो इस मामले में स्क्रीनिंग कमेटी की तश्कील पर गौर कर रहे हैं ताकि बेकसूर नौजवानों को फौरी रिहाई मिल सके। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल का कहना है कि आइंदा लोकसभा इंतखाबात में रास्त मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के दरमियान होगा। केजरीवाल का कहना है कि कांग्रेस हाशिए से बाहर हो गई है। दिल्ली के वजीर आला और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के मुस्तकबिल के ताल्लुक से पुरुमीद नजर आ रहे हैं। केजरीवाल का कहना है कि अब कांग्रेस हाशिए पर चली गई है, इसलिए आने वाले इंतखाबात में रास्त मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के दरमियान होगा। देश का आने वाला लोकसभा का चुनाव इस बार सीधे सीधे बीजेपी और आम आदमी के पार्टी के बीच में लड़ा जाएगा। कांग्रेस कहीं पिक्चर में नहीं है, तो इन दोनों पार्टियों के बीच में चुनाव लड़ा जाएगा। देश के सामने अब चॉइस है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसमें भ्रष्टाचार कभी कोई मुद्दा ही नहीं रहा है, उसमें येडियुरप्पा भी है, उसमें निशंक भी है, उसमें कई सारे और मंत्री हैं अलग अलग राज्यों में जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के लगातार आरोप लगते रहे। तो वो बीजेपी एक तरह से कांग्रेस का ही एक दूसरा वो है, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है जो इस देश के अंदर एक नई राजनीति की बात कर रही है, एक ईमानदार राजनीति की, सच्ची राजनीति की बात कर रही है। तो इस बार चुनाव जो है वो इन दोनों विचारधाराओं के बीच में लड़ा जाएगा। दूसरी जानिब कांग्रेस ने केजरीवाल के बयान को मुस्तरद कर दिया है। कांग्रेस लीडर राशिद अल्वी का कहना है कि असेंबली और लोकसभा इंतखाबात की नौइयत अलग अलग होती है। लोकसभा दिल्ली नहीं है, विधानसभा लोकसभा में बहुत फर्क होता है। लोकसभा के चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी, यूपीए 3 बनाएगी। जो नेता जो कहना चाहता, जो बोलना चाहता है वो बोल सकता है।
काबिले गौर बात है कि दिल्ली असेंबली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी की बाहर से तायद कर रही है। दिल्ली असेंबली में आम आदमी पार्टी के 28 और कांग्रेस के 8 अरकान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर बीजेपी ने केजरीवाल के दावे को मुस्तरद कर दिया है। बीजेपी के सीनियर लीडर विनय कटिहार का कहना है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के दरमियान खामोश इत्तेहाद है। उनको बड़ी गलतफहमी है, और क्योंकि यहाँ पर दिल्ली के अंदर ही केवल मीडिया का शो हो रहा है, मीडिया वालों को भी भारतीय जनता पार्टी 3-3 सरकारें बनी, और इनसे केजरीवाल से भी सादे जीवन में रहने वाले हमारे कई मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस और आप ये दोनों मिली हुई पार्टियां हैं, ये हम पहले भी कहते रहे हैं, आज भी कह रहे हैं, और ये बात विदित हो गई है, साबित हो गई। जिस प्रकार से कांग्रेस ने समर्थन दिया है, उसलिए लगता है कि आप और कांग्रेस ये दोनों मिली भगत से इस देश के अंदर काम कर रहे हैं। सर, वाया महाज के लीडर अतुल अंजान ने केजरीवाल के दावे को मुस्तरद कर दिया है। अतुल अंजान का कहना है कि आइंदा इंतखाबात में मुकाबला कई रुखी होगा। परिवर्तन की एक ख्वाहिश बहुत तेजी से है। महंगाई, भ्रष्टाचार, भारत की आर्थिक नीति, सामाजिक नीति, शैक्षिक नीति ने सबको परेशान किया है। विदेश नीति ने हमारे दोस्तों को दुश्मनों में बदल दिया। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के विरुद्ध और यूपीए के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, लेकिन यह कह देना कि अब वो साफ है, मैं नहीं मानता। आज भी 12 राज्यों में उसकी सरकार है। निश्चित रूप से कांग्रेस, बीजेपी की जो आर्थिक नीतियां हैं, सामाजिक नीतियां हैं, जो विदेश नीति है, उस नीति से देश को बहुत नुकसान है। उसके विरुद्ध लड़ने की जरूरत है, और उसके लिए सिर्फ एक ही पार्टी आ गई ऐसा मैं नहीं मानता। बहुत ही त्रिकोणीय, चतुष्कोणीय संघर्ष होगा। क्षेत्रीय दल भी मौजूद है। खबरनामे में वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। भाग दौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस, जंक फूड, पॉल्यूशन, नतीजा हर वक्त थकान, कमजोरी और अपनों से बढ़ती दूरी। खोया हुआ जोश और ताकत वापस पाएं हमदर्द हमदोजीन से। शिलाजीत, केसर, अंबर, अश्वगंधा और मूसली जैसी 22 मुफीद जड़ी बूटियों से बना फार्मूला बनाए आपको अंदर से मजबूत। तो हमदोजीन के साथ रहें हमेशा तैयार एक बेहतर जिंदगी के लिए रोजाना। हमदर्द हमदोजीन, हर्बल रिवाइटलाइजर मर्दों के लिए। देखिए ईटीवी उर्दू सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। मुसलमानों के हालात हैं वो कई जगह शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप से भी गए गुजरे हैं। जब हम माइनॉरिटी कहते हैं तो माइनॉरिटी एक होमोजीनियस ग्रुप नहीं है, हेट्रोजीनियस ग्रुप है। अलग अलग माइनॉरिटीज के अलग अलग इश्यूज होते हैं। 1984 के सिख मुतासरीन जो फवाराना फसादात में हुए थे, उनके लिए 650 करोड़ रुपए का पैकेज दिया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। वही पैकेज जब गुजरात के लिए जाता है तो वो वापस आ जाता है। 84 के रेट्स में दिए हैं तो स्टेट गवर्नमेंट को ही दिए हैं, हम डायरेक्ट डिस्पेंस नहीं कर सकते। बहुत सारी वक्फ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जहां रियासती हुकूमत ने और मरकजी हुकूमत ने भी कासिबाना कब्जा किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है कि वंस ए वक्त ऑलवेज ए वक्त। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हम इन तमाम जो नाजायज कब्जे या कब्जे जो जागीर अबालिशन इनाम के आए हैं, हम उसको रिव्यू कर रहे हैं। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर के रहमान खान से देखिए खास मुलाकात जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। हिंदुस्तानी सिफारतकार देवयानी खोबरागड़े ने वीजा धोखाधड़ी मुकदमे में उनके खिलाफ वजह किए गए इल्जामात को खारिज करने और गिरफ्तारी वारंट मंसूख करने के लिए न्यूयॉर्क की एक अदालत में अर्ज़दाश्त दाखिल की है। देवयानी के वकील डेनियल अरशैक के मुताबिक अदालत में दाखिल करदा मेमोरेंडम में कहा गया है कि देवयानी को मुकम्मल सिफारती इस्तिस्ना हासिल है और उनके खिलाफ अमरीका में फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।
अमेरिका ने इजरायली वजीर दिफा मूशे यालून के जॉन केरी से मुतालिक हालिया रिमार्क्स पर बरहमी का इजहार किया है, उसे नागवार और गैर मुनासिब बताया है। इजरायली वजीर दिफा ने कहा था कि मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए जॉन केरी की कोशिश जनूबी हिंद और अहमकाना है। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान मैरी हाफ ने कहा है कि इजरायली वजीर दिफा के बयान से मुताल्लिक़ खबर अगर दुरुस्त है तो ये बिल्कुल गैर मुनासिब बात है। अमरीका तर्जुमान ने कहा है कि जॉन केरी इसराइल में अमन कायम करने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं। Comments are accurate. We find the remarks of the defense minister to be offensive and inappropriate, especially given all that the United States has done to support Israel's security needs and will continue to do. Secretary Kerry and his team, including General Allen, have been working day and night to try to promote a secure peace for Israel because of the Secretary's deep concern for Israel's future. That's precisely why the Secretary and his team have been working so hard here. To question his motives, to distort his proposals is not something we would expect from the defense minister of a close ally. अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक हुकूमत शाम की सख्त नाकाबंदी की वजह से दमिश्क के युरमुक रिफ्यूजी कैंप में हालिया हफ्तों में 15 अफराद की मौत हुई है। इस कैंप में हजारों फिलिस्तीनी रिफ्यूजी भी फंसे हुए हैं। उन्हें ग़िज़ा की सख्त किल्लत का सामना है और उन्हें किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल नहीं है। जंगज़दा शाम के यरमुक रिफ्यूजी कैंप में हजारों फिलिस्तीनी रिफ्यूजी भी फंसे हुए हैं। हुकूमत शाम की सख्त नाकाबंदी की वजह से कैंप को ग़िज़ाई अशिया की सप्लाई बंद है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कैंप के तकरीबन 10,000 रिफ्यूजियों की मदद के लिए ग़िज़ाई अशिया से भरे 6 ट्रक कैंप रवाना किए थे, लेकिन रास्ते में काफिले पर फायरिंग के बाद ट्रकों को लौटना पड़ा। ट्रकों के लौटने की रिपोर्ट मिलने के बाद फिलिस्तीनी रिफ्यूजियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम फिलिस्तीनी वफ़द ने कैंप का दौरा किया। वफ़द की क़यादत कर रहे अहमद मजदलानी ने कहा कि शाम में मुकीम फिलिस्तीनी बाशिंदे पहले ही हालात के मारे हैं, अब उन्हें यहाँ भी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। أكثر من 300,000 نازح فلسطيني اضطروا إلى مغادرة مخيماتهم تجمعاتهم السكانية، خسروا كل ما يملكون، وهي في واقع الأمر نكبة ثانية إن لم تكن أسوأ من نكبة عام 1948۔ सख्त मुश्किलात से परेशान कैंप के रेफ्यूजियों ने नाकाबंदी खत्म करने का मुतालबा करते हुए हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरे भी किए। कैंप में मुकीम एक बुजुर्ग ने कहा कि कैंप में लोग भूख से मर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि शाम के बहरान से कबल यरमुक कैंप में तकरीबन 1,60,000 फिलिस्तीनी रिफ्यूजी क़याम पजीर थे। शाम में शुरू हुए सियासी बहरान के बाद यरमुक कैंप में मुकीम फिलिस्तीनी रिफ्यूजियों ने वाज़ेह कर दिया था कि वो शाम के सियासी बहरान का हिस्सा नहीं, लेकिन जब बागियों और असद फौज के दरमियान लड़ाई शुरू हुई, कई फिलिस्तीनी यहाँ से चले गए। अब यहाँ तकरीबन 18,000 फिलिस्तीनी फंसे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। न्यूजीलैंड और टीम इंडिया के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच इतवार को नेपियर में खेला जाएगा। मेजबान टीम के खिलाफ पहले मैच के लिए न्यूजीलैंड ने अपनी इस टीम में कमोबेश उन ही खिलाड़ियों को बरकरार रखा है जिन्होंने हाल ही में वेस्टइंडीज के साथ सीरीज 2-2 से बराबर की थी। टीम इंडिया के खिलाफ वनडे टीम में कोलिन मॉनरो की वापसी हुई है। टीम इंडिया के खिलाफ मैचों में 21 साला तेज गेंदबाज एडम मेलायन पर सबकी तवज्जो रहेगी, जिन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 में 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गेंदबाजी करके हलचल मचा दी थी। कश्मीर वादी में रवां साल भारी बर्फबारी हुई है। भारी बर्फबारी के चलते मिलिटेंटों के दरअंदाजी के वाकयात में इजाफा हो जाता है, लेकिन खून को मुंजमद कर देने वाले इस ठंड में भी हमारे मुल्क के जवान 24 घंटे मुल्क की हिफाजत के लिए तैनात रहते हैं। बॉर्डर पर रहने वाले जवानों पर पेश है एक खास रिपोर्ट। यूं तो हिंदुस्तानी सरहद मुख्तलिफ हैसियतों में चुनौतियों से पुर है, लेकिन मौसम सरमा में जम्मू कश्मीर में वाक़े कब्जे की लाइन पर आजमाइशों में मजीद इजाफा हो जाता है। कुदरती हालात के नासाजगार होने के बावजूद
फौजों के जज्बा हुब्बुल वतनी और उनकी हिम्मत की दाद देना जरूरी हो जाता है कि निहायत सख्त और आजमाइशी हालात में भी हमारी फौजें अपने फर्ज मनसबी की अदायगी में डटी रहती हैं। भारी बर्फबारी, जमा देने वाला सर्द मौसम, बर्फानी तोदे खिसक आने के अंदेशे और कई तरह के खतरों के